ہم میں سے بعض لوگ ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے خوف اللہ کا امید لوگوں سے، اور کبھی کبھی خوف لوگوں سے امید اللہ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں تفصیل اس کی نہیں کروں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھیے۔ اللہ کا ڈر ہے لیکن امید کس سے لگائے؟ ہم لوگوں سے لگائے۔ لوگوں کا ڈر ہے لیکن امید کس سے لگائے؟ اللہ سے لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا، اما بعد، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث۔ رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق ورواہ مسلم فی کتاب القدر۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ایک لمبی چوڑی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ابھی اس کی کچھ عبارت خوانی باقی تھی لیکن طویل ہونے کے ڈر سے میں نے یہیں پر اس کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد درس کا عنوان رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ کچھ عنوانات کے تحت ہم اور آپ احادیث سماعت فرما رہے تھے، اس میں اگر آپ غور سے سن رہے ہوں گے تو حقوق اللہ بھی اس میں آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، ماں باپ بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، معاشرے کے کمزور لوگ بھی آ گئے، ظلم سے بچنا بھی آ گیا، اور کسی پر زیادتی نہیں کرنا وہ بھی آ گیا، انصاف کرنا وہ بھی آ گیا، اور حقوق کو ادا کرنا وہ بھی آ گیا۔ بہت ساری باتیں آ گئیں، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، اولاد کے حقوق۔ اگر آپ کو یاد ہے، روزانہ اگر آپ لوگ درس سنتے ہیں، کچھ چہرے ہمیشہ ہوتے ہیں، نئے نئے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ سارے کے سارے مسائل گزر گئے ہیں، تو اس کے بعد خوف کا عنوان کیوں؟ سب سے بڑا سوال۔ اس کے بعد خوف کا عنوان صرف اس لیے کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو یہ تمام کام انسان کر سکے گا۔ اگر اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیا انسان کچھ کام کر سکتا ہے؟ اچھے کام کر سکتا ہے؟ اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے؟ اچھائی کو اپنانا اور برائی کو چھوڑنا یہ کام کر سکتا ہے؟ کب کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ایسا نہیں، کرے گا انسان، لیکن کب؟ جبکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو۔ اور آپ جان لیجئے، حدیث شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں، اتوار بھی ہے انشاءاللہ، 2-3 منٹ زیادہ ہوگا، زیادہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ خوف بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ خوف یعنی اللہ کا ڈر بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان 2 چیزوں کے درمیان ہمیشہ موازنہ کرتے رہتا ہے۔ ایمان 2 چیزوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک خوف، ایک امید۔ یہاں صرف 2 لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ورنہ خوف اور امید کے متعلق بہت سی باتیں آ سکتی ہیں۔ صرف مختصر الفاظ میں بتاؤں گا لیکن اس کی تفصیل بہت بڑی ہوگی، آپ کو سمجھنا ہے۔ صرف ایک خوف ہے، ایک امید۔ صرف خوف اللہ کا نہیں رہنا اور صرف امید بھی نہیں رہنا۔ اگر ہم صرف اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو پھر اللہ کا احترام نہیں رہتا دل میں، کیونکہ انسان ظالم سے بھی ڈرتا ہے، انسان بدکار سے بھی ڈرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے خوف کے ساتھ امید ضروری ہے، اور اگر خالی امید رہے نا تو پھر آدمی گناہ سے نہیں ڈرتا، بے حیائی سے نہیں ڈرتا۔ امید، میں توحید پرست، میں اتنا بڑا اللہ والا، میں فلاں، میں ڈھیکا، میں وہ، ہے نا۔ بعض لوگ خالی خوف لے کے گھوم رہے جیب میں، اور بعض لوگ صرف امید لے کے گھوم رہے۔ صرف خوف ہو تو بھی غلط، صرف امید ہو تو بھی غلط۔ خوف بھی ہونا، امید بھی ہونا۔ خوف کا مطلب میں اگر غلط کام کروں گا اللہ سزا دے سکتا ہے، امید کا مطلب میں اگر چھوٹا بھی نیک عمل کروں میرا پروردگار اسے پسند کر کے مجھے اچھی جگہ جنت میں داخل کرے گا۔ خوف اور امید دونوں بھی،
अब पॉइंट की बात क्या है पता है, अभी मैं बताया नहीं, अब बताने वाला हूँ। हम में से बाद लोग हैं, कभी कभार ऐसा होता है खौफ अल्लाह का, उम्मीद लोगों से, और कभी कभी खौफ लोगों से, उम्मीद अल्लाह से। समझ में आ रही बात? मैं तफसील इसकी नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं, समझिए। अल्लाह का डर है, लेकिन उम्मीद किससे लगाए हम? लोगों से लगाए। लोगों का डर है, लेकिन उम्मीद किससे लगाए? अल्लाह से लगाए। अल्लाह का खौफ, लोगों से उम्मीद, लोगों का खौफ, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह का खौफ, लोगों से उम्मीद। अगर ऐसा है तो हमारा ईमान है क्या? आज अक्सर दुनिया का तबका, मुसलमानों का जो तबका है, वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह का खौफ भी हो, अल्लाह से उम्मीद भी हो। इसके एक मिसाल मैं आपको बताऊं, हदीस बहुत प्यारी है, इसीलिए मैं आज समझने के लिए आपको ये खुलासा बता रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि चूँकि खौफ और उम्मीद दोनों ईमान का हिस्सा है, इसीलिए मेरे दिल में अल्लाह का खौफ भी है इंतहाई दर्जे का, और अल्लाह से उम्मीद भी है इंतहाई दर्जे की। यानी मजबूत खौफ भी, मजबूत उम्मीद भी। उसकी मिसाल खुद वो बयान करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये ऐलान हो जाए, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो जाए, सारी कायनात को मैं जन्नत में डालूंगा, लेकिन एक बदनसीब इंसान को मैं जहन्नम में डालूंगा, तो अल्लाह से मैं इतना खौफ खाता हूँ कि मैं समझूंगा वो बदनसीब मैं ही हूँ, और उम्मीद भी मेरी मजबूत है अल्लाह पर। वो मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर अल्लाह का ऐलान हो जाए, सारी कायनात को जहन्नम में, सारी दुनिया को, पूरी मखलूक को जहन्नम में डालेगा अल्लाह, लेकिन एक खुश नसीब को जन्नत में डालेगा, तो मेरी इतनी उम्मीद है अल्लाह पर कि मैं समझूंगा कि खुश नसीब मैं ही हूँ। ऐसा खौफ और ऐसी उम्मीद अगर हम लेकर चलेंगे ना, इंशाल्लाह देखिए अल्लाह से एक भी शिकायत नहीं रहेगी और ना ही लोगों से रहेगी। खौफ और उम्मीद में गड़बड़ है, इसीलिए कभी अल्लाह से शिकायत, कभी लोगों से शिकायत। ईमान हमारा डगमगा रहा है, पता नहीं कब फिसलेगा, कब खड्डे में जाकर गिरेगा, और हम कब कभी कहाँ जाकर गिर जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे। अब हदीस देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम में सबसे सच्चे इंसान थे, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तुम में से हर एक को अपने माँ के पेट के अंदर 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में रखता है, फिर 40 दिन होने के बाद उसे खून का लोतड़ा बनाता है, फिर वो खून का लोतड़ा भी 40 दिन तक वैसे ही रहता है, फिर 40 दिन के बाद वो खून का लोतड़ा गोश्त का टुकड़ा बन जाता है, फिर वो गोश्त का टुकड़ा 40 दिन के बाद हड्डी बन जाती है। ऐसे 4 मरतबा जब 40 दिन हो गए, तो 4 महीने हो गए ना, 4 महीने या 5 महीने हो जाते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला रूह फूंकने के लिए एक फरिश्ते को भेजता है। वो फरिश्ता रूह फूंकने के लिए आता है 4 बातों को लेकर। रूह भी फूंकता है, फिर 4 बातें भी लिखता है। क्या लिखता है? इसका रिज्क क्या क्या होगा, ये क्या क्या कमाएगा, और उसका अजल यानी मौत, कब ये मरेगा। तीसरा, उसका अमल, वो क्या करने वाला है। चौथा, शकीयुन और सईदुन, वो बदबख्त होगा या खुश नसीब होगा, नेक बख्त होगा, यानी नेक होगा या गुनहगार होगा। ये 4 बातें फरिश्ता रूह फूंकते वक्त लिख देता है। पहली बात क्या लिखी जाती है? रिज्क। पता चला हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लिखा जा चुका है। हम रिज्क के पीछे नहीं दौड़ते, रिज्क हमारे पीछे दौड़ता है। ये दीवाने हैं हम जो कहते हैं बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। भाई मेहनत करना पड़ता है, ये बोल रही है, बैठे हुए इंसान को कुछ नहीं मिलता, लेकिन रिज्क हमारे पीछे, हम रिज्क के पीछे नहीं, क्योंकि लिखा गया है ना। जब तक एक दाना भी बाकी रहेगा ना, कोई दुनिया का इंसान हमको मार नहीं सकता। क्यों? हमारे नसीब का वो एक दाना अभी बाकी है। तो पहली बात लिखी जाती है। दूसरी, मौत, कब मरेगा। तीसरा, उसका अमल, कैसा अमल करेगा। चौथा, नेक होगा या बद होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, इस तकदीर की बुनियाद पर फवल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, तुम में का हर इंसान जो जन्नत में जाने वाला है, सारी जिंदगी जहन्नम का काम करता रहेगा, यहाँ तक कि जहन्नम उससे सिर्फ एक बालिश दूर रहेगी। यहाँ डरने का मतलब एक बालिश दूर रहेगी जहन्नम।
अचानक अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर उसकी नसीब में जो लिखा गया है वो गालिब करेगा और मरते वक्त वो अच्छा अमल करके जन्नत में चला जाएगा। सारी जिंदगी जहन्नम का अमल, लेकिन आखिर में जन्नत का अमल करके जन्नत में चला गया। क्यों? क्योंकि पहले ही लिखा जा चुका है, यह जन्नती है या जहन्नमी है। कोई अगर गलत काम करे तो फौरन डांट डपट नहीं करना, कोई अच्छा काम करे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं बोलना, उम्मीद रखना, खौफ रखना। लेकिन अक्सर लोग जो है ना खिलाफी करते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि एक इंसान होगा जो अगर जहन्नम में जाने वाला होगा तो सारी जिंदगी जन्नत का अमल करता रहेगा, नेक अमल करता रहेगा, यहाँ तक कि जन्नत उसके बिल्कुल एक बालिश दूर रहेगी। अचानक अल्लाह तबारक व तआला उसकी नसीब उस पर गालिब करेगा और एक अमल वो जहन्नम में जाने का ऐसा करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा। इस हदीस को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। कई सारे मसाइल इस हदीस से वारिद होते हैं। एक ही मसला, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने पेश की है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें डर क्या है, अल्लाह का खौफ क्या है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला जब हमारी नसीब ऐसी है, मैं नेक काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरा आखिरी अंजाम क्या है, मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं मेरा आखिरी अंजाम क्या है, तो ऐ अल्लाह मुझे हमेशा इस्तिकामत की तौफीक नसीब फरमा, मुझे मजबूती की तौफीक नसीब फरमा। क्यों? इस बात का डर अगर है, इंशाअल्लाह अल्लाह से खौफ के साथ उम्मीद भी की जा सकती है कि इस्तिकामत है तो मरते वक्त तक इंशाअल्लाह इंसान अच्छा ही अमल करेगा। एक सहाबी है, इस हदीस से फिट होता है ये वाक़िया, उनका नाम गालिबन अब्दुल्ला बिन मसूद या इब्ने अब्बास है और इस हदीस के रावी भी अब्दुल्ला बिन मसूद ही हैं। रो रहे हैं, उनकी मौत का वक्त करीब आ रहा है, अभी चंद दिनों में वो मर रहे हैं। मरने से पहले बहुत ज़ारों की तार रो रहे हैं। तो उन लोगों ने जो उनके पास थे पूछा, क्यों रो रहे हैं? गुनाह सता रहे, बहुत ज़्यादा गलतियाँ सता रही है तुम्हें कि बहुत ज़्यादा जुर्म हो गए हैं मेरे गुज़िश्ता ज़िंदगी में, इसलिए रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के नबी के साथ ज़िंदगी गुजारा हूँ। एक काड़ी उठाकर उन्होंने बताया अपने सामने वाले को और कहा, इतने काड़ी के बराबर भी मैंने गुनाह नहीं किया है आज तक। ये फ़ख्र था, सहाबी थे, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज मैं मुसलमान हूँ। एक हदीस मैंने नबी से सुनी है, उस हदीस की बुनियाद पर कल मैं मुसलमान रहूँगा या नहीं रहूँगा मुझे नहीं मालूम, या परसों मैं मुसलमान रहूँगा या नहीं रहूँगा मुझे नहीं मालूम। क्यों? किसकी नसीब में क्या अंजाम लिखा गया है किसी को नहीं मालूम। उस डर से मैं रो रहा हूँ, यह है असल में खौफ। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आयत के पहले टुकड़े का तर्जुमा हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन दूसरे टुकड़े का क्या मतलब है बहुत कम लोगों को मालूम है। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में, ऐ ईमान वालो बखूबी अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इस बात की फिक्र हमेशा करते रहो कि तुम आज मुसलमान हो तो मरते वक्त तक भी मुसलमान रहो। इस बात का खौफ, इस बात की उम्मीद हमें यह हदीस सिखाती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छा अमल करने के लिए, अच्छा अंजाम पाने के लिए अल्लाह से सही माने में खौफ और अल्लाह से सही माने में उम्मीद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।